So in continuation with my previous video lecture, here I am taking the second point, that is manufacture of coke by Otto Hoffmann's byproduct oven method. So let me tell you that byproducts like the coal gas, ammonia, benzoyl oil, tar, etc., they are recovered in this method. Heating is done by coal gas, that is one of the byproducts. Now heating is done based on the principle of regenerative system of heat economy. That is, here we utilize the waste gases also called as flue gases, FLUE, flue gases, by heating the checkerwork of bricks. The byproduct oven method involves series of narrow silica chambers. Now you listen carefully over here, that what is the setup. The setup is that it consists of series of narrow silica chambers, and each about 10 to 12 meter long. Each silica chamber is 10 to 12 meter long, 3 to 4 meter tall, and 0.4 to 0.45 meter wide, erected side by side to form a battery. So I show you, this is the, on the left hand side you can see this is the battery. These are the silica chambers, and the length is 10 to 12 meter long, tall they are 3 to 4 meter tall, and zero point 0.4 to 0.45 meter wide, and they are erected side by side, connected by side pipes to form a battery. This is the diagram of one single battery, and many more batteries can be connected in series. Now each chamber has a hole at the top to add the charge, that is the coal, uh, for a gas takeoff, as well as refractory lined door for the coke discharge. Now after the charge is added from the top, the coke ovens are heated at 1200 degrees centigrade by burning the producer gas and employing regenerative principle of heat economy. It takes 15 to 20 hours for carbonization of the coal. When carbonization is over, the red hot coke is pushed in trucks with rams. Quenching is done, I told you previously, either wet quenching, that is by spraying cold water, and other is the dry quenching, that is by using inert gases. So dry quenched coke is drier, cleaner, and stronger than the wet quenched coke, and the yield is about 70%. So now let me explain you with the help of this diagram. Students, you can see the battery. It is consists of silica chambers. Here the coal is filled from top, which is called charging. Filling means coal को add करना मतलब charge करना, charging करना, उसमें भरना, fill करना मतलब charging करना. And the silica chambers, they are connected side by side, joined by a pipe. Now this whole enclosure, it is called as a battery, and battery is checkerwork of bricks. Okay, now what we do, after filling the coal, we insert air from one end and producer gas from the other. So producer gas is our gaseous fuel. We need fuel to get a high temperature. Now the producer gas burns inside the battery, and air is required for oxygen. So gas burns, and slowly after some time the temperature of the battery rises and reaches to about 1000 or 1200 degree centigrade. Now the silica chambers, they are heated. They become very, 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 very hot, and inside the coal also gets heated up, and no gaseous products are allowed to escape. You can see they are connected in series. So the here the principle is regenerative system of heat economy, means the waste gases, when the producer gas burns here, the gaseous waste, that is flue gases, they, after leaving the battery through chimney, they heat the checker works, so that these checker works become hot. And next time what we do, we insert the air and producer gas from these hot checker works, and the waste gases are coming out, will come out from the middle.
So in this way, it becomes easy for a producer gas to get invited and ignited at a lower temperature, and this also helps in maintaining the hotness, or the maintaining the high temperature of the battery, and the battery does not cool down. Otherwise it will cause fluctuations of heating and cooling, and heating and then again cooling. So you can see the diagram here. Now whatever the byproducts they are formed, all are collected, and here we call it as a coal gas, or better it is called as, instead of calling coal gas, it is called as coke oven gas. Now it depends on the like size of your plant, how you want to, how much you want to produce the coke and so on, or how much coal gas you require. So this battery, a single battery, may be joined to other batteries in series, and it may be 10 to 20 batteries also in series, and that depends on the capacity of the plant. So such type of plants are called bigger plants then. So a lot of amount of coke oven gas is produced. So the gas coming out of the battery is now called as, instead of calling coal gas, we better to say coke oven gas, because it still contains many useful products. तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि जैसे हमने उसमें बीहाइव ओवन मेथड में समझा, कुछ कुछ वैसा ही है वहाँ पे, यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है। यहाँ पर ये सिलिका के चैम्बर्स होते हैं, उनके डायमेंशंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। 10 से 12 मीटर लॉन्ग, 3 से 4 मीटर लंबे होते हैं, और 0.4 से 0.45 मीटर ये चौड़ाई में होते हैं, और साइड बाय साइड इनको देखिए लगाया गया, और आपस में ये पाइप से कनेक्टेड हैं। अब ये एक बैटरी का पूरा सेटअप है, और नीचे ईंटों का चेकर वर्क लगा हुआ है। तो शुरुआत में हम बीच के 2 पाइप से आप देख रहे हैं, उससे एयर और प्रोड्यूसर गैस इंसर्ट करते हैं। प्रोड्यूसर गैस यहाँ पर ईंधन है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर हमें चाहिए इस भट्टी को गर्म करने के लिए। तो प्रोड्यूसर गैस एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंदर इसका कंबस्टन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हॉट गैसेस हैं ये चेम्बर्स के बीच में से गुजरती हैं, और धीरे 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 पूरी भट्टी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि 1000-1200 के करीब हो जाता है। और अब ये भट्टी ये हाई टेम्परेचर की हेल्प से ये सिलिका चैम्बर्स हीटअप होते हैं। सिलिका चैम्बर्स में रखा कोल अब बहुत अत्यधिक गर्म हो जाता है, और इसमें से जो भी गैसेस निकलेंगी, वेस्ट गैसेस, वो कहीं भी इधर उधर भागने नहीं दिया जाता, बल्कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड चैम्बर्स में से होते हुए और पाइप्स के थ्रू कलेक्ट कर ली जाती है। तो यहाँ पर ये बता दें कि महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जिस पर कि ये वर्किंग आधारित है, वो है रीजनरेटिव सिस्टम ऑफ हीट इकोनॉमी। इस रीजनरेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि पैसे पे जो ऊष्मा पे खर्च होने वाला पैसा है उसको हम कैसे बचाएं। तो ऊष्मा पे, हीट एनर्जी पे जो पैसा हम लगाएंगे, इकोनॉमी मतलब पैसा, उसको हम बचा सकते हैं कैसे? जो हॉट गैसेस हैं उनसे हम वापस से ऊष्मा प्राप्त करके। तो आप साइड में 2 देख रहे हैं, जैसे ये वेस्ट गैसेस इस बैटरी में बर्न होती हैं। जो वेस्ट गैसेस उनको फ्लू गैसेस कहते हैं। ये साइड के चेकर वर्क से बाहर निकलती हैं और चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। तो जब ये बाहर जाती है तो ये साइड वाले लेफ़्ट और राइट के 2 चेकर वर्क्स हैं, इन वाली ईंटों को बहुत गर्म कर जाती हैं, यानी कि अपनी ऊष्मा इनको दे जाती हैं। तो कुछ समय के बाद, जैसे 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, हम क्या करते हैं कि जो एयर है और प्रोड्यूसर गैस वो इन वाले पाइप से, हम साइड वाले पाइप से अंदर भेजते हैं, यानी कि एयर लेफ्ट से, प्रोड्यूसर गैस राइट से भेज देंगे। और अब इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार जैसे ही एयर और प्रोड्यूसर गैस इन गर्म भट्टी के संपर्क में, गर्म ईंटों के संपर्क में होकर अंदर घुसेगी, तो इनका ये तुरंत ही जल जाएगी, और भट्टी का जो ताप है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। और अब ये वेस्ट गैसेस जो हैं वो बीच में से बाहर निकलेंगे, जहाँ पर एयर और प्रोड्यूसर गैस अभी लिखा है उस वाले रास्ते से ये चिमनी के लिए बाहर निकलेंगे। और जब ये जाएंगे तो ये बीच वाले जो ईंटें हैं इनको अपनी ऊष्मा दे जाएंगी। तो अब बीच वाले जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, जिनका हमने चेकर वर्क बनाया हुआ है, ये अब गर्म हो जाएंगे। तो कुछ समय बाद हम फिर से डायरेक्शन एयर और प्रोड्यूसर गैस का बीच से कर देंगे, और साइड में से
ये अपनी ऊष्मा देती हुई बाहर निकलेंगे, फिर हम इसको वापस से टर्न कर देंगे। इस तरह से कुछ कुछ समय के अंतराल में इनका जो फ्लो है वो रिवर्स कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि भट्टी का ताप गिरे नहीं और वो मेंटेन रहे, जिससे कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे कोल जो है वो कोक में बदलेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सब डायग्राम में लिखा है कि आउटगोइंग वेस्ट गैसेस हीट द रीजनरेटर्स बिफोर escaping to chimney, space between the chambers for the flow of hot gases। तो ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो गैसेस ये बैटरी में से बाहर निकलेगी उसको, वैसे तो वो कोल गैस होती है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ही यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अमोनिया होता है, उसमें बेंजीन होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, नैफ्थलीन है, तो इन सब के कारण इसको हम कोल गैस नहीं कह के और कोक ओवन गैस कहते हैं। तो अगर हमारा प्लांट बहुत छोटा मोटा है तो हम 1-2 बैटरी से काम चला सकते हैं, लेकिन कई बार होता है प्लांट हमारा बहुत बड़ा है, बहुत कैपेसिटी है, बहुत पैसा लगाया हुआ है, तो हम इस तरह की कई सारी बैटरीज़ को एक के बाद एक सीरीज़ में कनेक्ट करते जाएंगे, तो जिससे कि सारी बैटरी से जो उत्पन्न होने वाली गैस है, यानी कि जो कोक ओवन गैस है, उसको हम एक साथ ट्रीट कर पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आगे इस कोक ओवन गैस से हम बाय प्रोडक्ट्स की रिकवरी कैसे करेंगे, क्योंकि इस वाले टेक्निक का नाम है ऑटो हॉफमैन्स, जो ऑटो हॉफमैन ने दिया बाय प्रोडक्ट ओवन मेथड, अर्थात हम बाय प्रोडक्ट्स की यहाँ पर रिकवरी करते हैं। तो आप इसी डायग्राम में देखेंगे कि हमने यहाँ पर मैंने कुछ टावर्स बनाए हैं। तो ये जो कोक ओवन गैस है, ये सबसे पहले हम इसको पास करते हैं एक, देखिए ऊपर लिखा है 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 स्टेप्स हैं, 5 टावर्स हैं जिसमें से ये गुजरेंगे। तो सबसे पहले कोक ओवन गैस सबसे पहले फर्स्ट टावर से गुजरेगी, तो ये नीचे से ऊपर राइज होती है, गैस है तो वो नीचे टावर से, और टावर बहुत लंबे ऊंचाई में होते हैं, तो इसमें जैसे ही ऊपर राइज होगी, ऊपर से हम लिक्विड अमोनिया फव्वारे के रूप में, बौछार के रूप में नीचे गिराएंगे। तो लिक्विड अमोनिया ये गैस के संपर्क में आएगी और रबिंग होगी, दोनों की आपस में टकराएंगे, और जितना भी टार होगा, जिसको हम कोल तार कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ, क्योंकि आगे अगर ये कोल गैस में रह गया तो ये आगे हमारी वर्किंग में ये प्रॉब्लम देता है और कहीं पे भी जम सकता है, और जो आगे के इक्विपमेंट्स है उनको ब्लॉक कर देता है। तो टार को रिमूव करना और साथ ही जो डस्ट है उसको रिमूव करने का बहुत पहला स्टेप है। तो इस तरह से टार और डस्ट दोनों नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं और उनको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर ये जो बची हुई गैस है ये फिर से फर्स्ट टावर से अब ये सेकंड टावर में जाएगी, यहाँ पे भी ये बॉटम से और ऊपर राइज करती है, और जैसे ही ऊपर से हम वाटर, साधारण पानी का स्प्रे करते हैं तो रबिंग होती है इनकी, और अब जो पानी है वो अमोनिया के संपर्क में आता है। गैस में जो 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 हमारे कोक ओवन गैस है उसमें अमोनिया गैस भी है, तो उसके संपर्क में आएगा और अमोनिया पानी से H2O से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि हम कलेक्ट कर लेते हैं दूसरे टैंक में। आप देख सकते हैं नीचे एक वाल्व लगा हुआ है, पाइप है, और यहाँ पर ये भी बता दें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम दोबारा हीट करें तो ये वापस से अमोनिया गैस देगा, और अमोनिया को हम पहले वाले स्टेप में टावर में वापस से यूज़ में ले सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं वो वापस से इसमें यूज़ में भी आ रहे हैं। फिर हम इस बची हुई शेष जो कोक ओवन गैस है उसको हम थर्ड चैम्बर से टावर से गुजारते हैं। इस टावर में भी ये नीचे से ऊपर राइज होती है, और अब हम ठंडा पानी ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में आती है, जितना भी नेफ्थलीन फ्रैक्शन है वो कंडेंस हो जाता है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। बची हुई को हम नेक्स्ट चैम्बर से गुजारते हैं, जो चौथा चैम्बर है, टावर है, और उसके अंदर जैसे ही नीचे से ऊपर राइज होती है, पेट्रोलियम जो है उसको ऊपर से हम स्प्रे करते हैं। पेट्रोलियम के संपर्क में आने से जितना भी बेंजीन है और उसके डेरिवेटिव्स है, जैसे टोल्यूइन है, फिनॉल है, क्रिसॉल से, ये सारे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इनको हम टैंक में, अलग टैंक में पाइप्स के थ्रू कलेक्ट कर देते हैं। अब ये कोक ओवन गैस लास्ट चैम्बर में
जाती है। और लास्ट चेम्बर में ट्रेज रखी हुई हैं। ये ट्रेज ऐसी हैं जिनको कि हम जब चाहे रिमूव भी कर सकते हैं। और इन ट्रेज के ऊपर मॉइस्ट आयरन ऑक्साइड है Fe2O3। ये आयरन ऑक्साइड जो है वो इस बची हुई कोक ओवन गैस में जो सल्फ़र है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनस गैस है और ये आगे चल के इक्विपमेंट्स में कोरोजन भी करता है सल्फ़र। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके और आयरन सल्फाइड में बदल जाता है। और इस प्रकार हमारी जो कोक ओवन गैस है वो पूरी तरह से बाय प्रोडक्ट्स उसमें से हमने रिकवर कर लिए, निकाल लिए। अब ये फ्री हो चुकी है इन गैशियस प्रोडक्ट से, तो इसको हम कहते हैं कोल गैस। और ये कोल गैस अब पाइप्स की हेल्प से हम टैंक्स में इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब ये पूरा का पूरा आयरन ऑक्साइड एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, पूरा आयरन सल्फाइड में बदल गया, तो हम इन वाली ट्रेस को निकाल लेते हैं और नई ट्रेज लगा देते हैं। और जो ट्रे हमने बाहर निकाली है जो आयरन सल्फाइड की है उसको हम खुले में रख देते हैं एयर में, ऑक्सीजन में। तो कुछ समय बाद वो वापस से उसमें से सल्फ़र उड़ जाता है और आयरन ऑक्साइड वापस में से बन जाता है। इस तरह से हम इसको कहते हैं रीजनरेट करना। हमने इसको दोबारा से प्राप्त कर लिया, रीजनरेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, हियर अगेन आई एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश that the coke oven gas which is obtained from this battery, it is first passed through it is passed through series of towers. Here you can see in the diagram there are 5 towers and 5 steps are included here. So in first tower, when it rises from top to bottom, liquid ammonia is sprayed and all the tar and dust settle down, and the remaining gas passes to the second tower where water is sprayed or sprinkled, and here rubbing takes place, and ammonia gas from the coke oven gas reacts with H2 to form ammonium hydroxide. When we heat ammonium hydroxide, we can recover back the ammonia which can be utilized in step 1. Now the remaining coke oven gases pass through another tower. Here cold water is sprinkled. So again the gas rubs with the cold water, and here the naphthalene fraction, naphthalene, anthracene, these fractions they separate out. Remaining coke oven gas is passed through fourth tower, and here petroleum is sprinkled from the top. Here again rubbing takes place, and benzene and its derivatives like toluene, phenol, cresols, etc. they separate out. The leftover gas, which now contains hydrogen sulfide, which is poisonous gas and also corrodes the different parts of the like furnaces and all. So it has to be removed, and this is called purification step. So here the last chamber, fifth chamber, contains trays, and in these trays moist iron oxide is kept. So as soon as the gas comes in contact with moist Fe2O3, it gets converted into Fe2S3, that is iron sulfide. And the gas which is now pure, or which is from which all the important gaseous products have been recovered, is now called as coal gas. The coal gas is now connected with the help of pipes. It is collected in tanks and kept for further use in as a gaseous fuel, because it forms one of the very important gaseous fuel. So let us talk about the regeneration of iron oxide. The iron oxide which is totally converted, if suppose totally converted into iron sulfide, and after some time it will stop purifying the coke oven gas. So we remove these trays and insert the new trays of iron oxide, and these iron sulfide trays, they are kept in open or kept in air, and these iron sulfide then again comes in contact with oxygen and is reverted back to iron oxide and FeO, and then FeO reacts with oxygen to form Fe2O3. In this way the purifier is again regenerated. So this is the complete like description of the Otto Hoffmann's byproduct oven method. And you can see here whatever are the 5 steps recovery of byproducts. I have mentioned them, whatever I have told you verbally, it is mentioned here. That is recovery of tar, recovery of ammonia, recovery of naphthalene, then recovery of benzene, recovery of H2S, and then regeneration of the purifier. So this is, I have already explained you verbally. So in this way, the gas which we obtained after recovery of byproducts from coal during manufacture of coke is known as the
coal gas, and coal gas is one of the very, very important gaseous fuel.